This press conference is being live streamed on ECI's social media platforms as well as Doordarshan. I have with me today the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Arun Goyal Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters from Delhi. I am B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format, as I told you, is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with a presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your question. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. Thank you, DG Media. Honorable Election Commissioner and my colleague Shri Arun Goyal Ji, who is here on my right hand side and left to your side. Shri Nikunj Dhal, CEO Odisha, senior colleagues from the Election Commission of India. First of all, a very good evening to all of you. Namaskar. भारत निर्वाचन आयोग की यह उड़ीसा यात्रा जो आप सब जानते हैं आगामी लोकसभा चुनाव और जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं उनके समीक्षा के क्रम में की गई है। ये भी आपको अवगत है कि 2024 में 4 राज्यों के और चुनाव होने हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम भी शामिल हैं। तो ये जो प्रिपरेशन की रिव्यू है ये स्टेट्स और पार्लियामेंट के इलेक्शन 2024 दोनों के लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to, on the behalf of Election Commission and through your medium, would like to say that we are fully prepared to conduct 2024 parliamentary elections and also the state assembly elections. Every preparation is almost complete. And in that sense, before I start my presentation, I would like to request through you from the Commission side that all the voters of Odisha should come and participate in this festival of democracy. सभी से बहुत ही विनम्र अनुरोध है सभी उड़ीसा के वोटर्स से कि आपके लिए बहुत तैयारियां की हैं हम लोगों ने और करने वाले हैं, तो जरूर जरूर वोट डालने के लिए आएं। युवा वोटर्स हों या महिला वोटर्स हैं या हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में इनएक्सेसिबल एरियाज की वोटर्स हैं। तो ये चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है, इसमें जरूर जरूर पार्टिसिपेट करें। सो फ्रेंड्स, the Commission began its visit yesterday and first of all met with the political parties. That is a tradition, we first hear all the political parties so that whatever they have to tell us, whatever they have to have issues, they tell us. Then we met all the district collectors and the SPs and the IGs, commissioners. Thereafter we met today morning all the enforcement agencies of the central department and the state departments. And thereafter the Chief Secretary, DG and other senior officers of these states. So I brief you about what happened in those meetings, what were the issues and what is our reaction. So I'll give you full brief on this so that you are fully aware of what is happening. In the Commission we follow a very strict policy of 3 main ideologies. 1, inform, inform, inform. So we disclose whatever we do to everybody, either through our websites or through press conferences. Secondly, involve. We involve all political parties, media and other stakeholders at every stage of whatever we do. So that आपको बता भी दें हम क्या कर रहे हैं, आपके प्रश्न भी लें और उसके बाद में उसका उत्तर भी दें. So the participation and then disclosure. This is what we always manage. So in that crumb, I will first tell you what the political parties told us. What is their expectation from us? हमने जो मीटिंग्स की उसमें नेशनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी और बाकी नेशनल रीजनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, बीजेडी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने आए। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं उनका क्या कहना था, बिकॉज उनको जो कहना है वो हम सुने और उसका जवाब दें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So the main issues inter alia were that first demand was that we ensure the neutrality of the government machinery. Many parties stated that the administration is perceived to be not neutral.
So they favor a party in power. Therefore, the level playing field should be established and administration should become totally aligned to this principle. There was also an apprehension that during elections, the facilities and entitlements which are given to the political parties, जैसे ग्राउंड उनको देना है, वकील्स की परमिशन देना है, लाउड स्पीकर की परमिशन देना है, तो वो उनको नहीं मिलती है, दूसरों को जल्दी मिल जाती है. तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, that whatever entitlement the political parties ask for, they should be given to everybody equally. Then administration last election में was not all that alive to checking the violence. There was violence which happened in last elections in certain areas. तो उनको पूरी तरीके से एनर्जाइज किया जाए कि यहाँ वायलेंस ना हो. ऐसा भी लोगों का कहना था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, नॉट ऑल, कि गवर्नमेंट व्हीकल्स और को या एम्बुलेंसेस को यूज किया जाता है कुछ इरेगुलर सामान ले जाने में, जिसमें कैश भी शामिल है. ऐसा उनका परसेप्शन था, उनका कहना था. सिमिलरली ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए किया जा रहा है या किया जा सकता है. ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी. दूसरी उनकी रिक्वेस्ट थी कि ईवीएम्स को जो है वो सबके सामने में एक दो जगह में सील नहीं किया गया था लास्ट टाइम, उसको इंश्योर किया जाए. जितने वेयर हाउसेज हैं उनमें सब में सिक्योरिटी पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाए, जिसमें खासतौर से सीएपीएफ की यानी सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी भी हो स्टेट के साथ साथ. देन उनका यह भी कहना था जब इलेक्शन खत्म हो तो कितने वोट पड़े उसका एग्जैक्ट खाका, उसका एग्जैक्ट हिसाब किताब फॉर्म 17C के अंतर्गत कैंडिडेट्स को के एजेंट्स को दिया जाना चाहिए, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी उसमें चेंज का प्रॉब्लम ना हो. दो और स्पेसिफिक थी उनकी डिमांड्स कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर्स चलाते हैं या पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, तो पेड न्यूज को चेक किया जाए. ऐसा ना हो कि न्यूज के फॉर्म में पार्टी प्रमोशन या अपना प्रमोशन किया जाए, उसको आप पेड न्यूज के रूप में माने. ये भी कहना था उनका कि जो कुछ एक पार्टी का जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं उसमें सिंबल यूज हो रहा है पार्टी का, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नॉर्म ऑन द सिंबल ऑर्डर्स एंड ऑल्सो misuse of public funds. These were the demands. So as you know, the feedback from the political parties are very, very important. They are important stakeholders in the entire election process. The first being the voter, most important being the voter. They are the second interface between the voter and the commission. So we have, I will tell you each point during the presentation. लेकिन ये निश्चित है कि जो वो पॉइंट उठाए उनका समाधान होना चाहिए, नॉट ओनली एक्चुअली बट परसेप्शनली ऑल्सो. तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इनका जवाब दूंगा सबका एक एक करके व्हेन द सब्जेक्ट कम्स और इन द एंड. सो एज रिगार्ड्स द असेंबली इलेक्शंस एंड द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा, कार्यकाल जो है उड़ीसा विधानसभा का 24 जून 2024 को खत्म हो रहा है और पार्लियामेंट्री का जो है 16 जून को खत्म हो रहा है, यानी 16 जून से पहले ये चुनाव संपन्न होने जरूरी है. उड़ीसा में 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जैसे आपको मालूम है, जिसमें से एसटी 33 हैं और ये एसटी का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है. इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 21 में से 13 जनरल हैं, एससी की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और एसटी की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द एंटायर कंट्री. देन second highest actually if you look at it in the entire country after Jharkhand, which has 6 parliamentary constituencies reserved for STs. If I tell you about what is your electoral roll like, मतलब कौन लोग वोट करेंगे, तो पूरी स्टेट में 3.32 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से मेल 1.68 हैं और फीमेल वोटर्स 1.64 हैं. इस बार प्रयास रहा है कमीशन का बहुत अधिक कि इसको काफी इंक्लूसिव बना जाए, प्योर बनाया जाए. तो हमारे पास 3380 थर्ड जेंडर भी हैं. वी हैव मेड स्पेशल एफर्ट्स टू एनरोल देम बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. एंड वेरी सीनियर सिटीजन्स आर 6.8 lakhs. और जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको भी खासतौर से इलेक्टरल रोल्स में ईयर मार्किंग की गई, सो दैट वी कैन गिव देम एक्स्ट्रा फैसिलिटी. द फैसिलिटी बीइंग द वोटिंग फ्रॉम द हाउस
और स्पेशल फैसिलिटीज एट दी पोलिंग स्टेशन। देन आपको जान के खुशी होगी कि इसमें से ऐसे भी हमारे पास 9060 मतदाता हैं जो 100 साल से अधिक के, more than 100 years, centenarians. So this also tells about the good environment and good health profile of the state, that we are privileged to have so many senior citizens with us. Friends, if you compare it with the last 2019 elections, the figures, so this all we will be putting on the website. Immediately after this it will be available, so if you want to use, you can use this. Total electors have increased, male electors have increased, female electors have increased as it is shown in the chart, and most importantly 18 से 19 साल के वर्ष के जो इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ के अब करीब करीब 7.5 lakhs हो गई है, 7.5, which is a very very healthy progress. Third genders have also increased, और अगर हम लोग अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की वृद्धि को देखें जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, तो वो भी करीब करीब नेक्स्ट में दोगुने से ज्यादा हो चुके हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी हेल्दी ट्रेंड. अगर टोटल इलेक्टरल रोल्स में परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो 4.4% की वृद्धि हुई है 2019 के बाद से. महिला मतदाताओं की भी संख्या बढ़ी है. और नाउ देयर इज ए स्पेशल फोकस ऑन द वुमेन in the elections. This slide will reflect you as to how the women have really increased. जो इलेक्ट्रल रेशियो है आज की डेट में women जेंडर इलेक्ट्रल रेशियो वो बढ़ के 972 हो गया. This is 36 points more than the 2019 elections. यानी पुराने समय से 2019 से अब तक महिलाओं की संख्या हमारे इलेक्ट्रल रोल्स में अधिक हो चुकी है. और 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां ये रेशियो 1000 से भी ज्यादा है, यानी वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है. सिमिलरली जो मैंने आपको अभी 18 से 19 की फिगर बताई थी यंग वोटर्स की, उसमें भी वुमेन वोटर्स की संख्या 3.4 lakhs की है. दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ द यंग गर्ल्स कमिंग टू आवर इलेक्टरल रोल. And we will request through you again to all the young voters to come and vote, all women and all male electors. Then friends, अगर यूथ की बात करें उसी क्रम में तो एक कार्यक्रम चलाया गया था यहाँ मुनबी मीता. I am also Mita means if I am also participating in the elections. There were special AEROs who were appointed during the summary revision to attract and to have an outreach towards the young voters. तो जैसे स्कूल में कैंपसेस में जाना, उनसे बात करना, दिस हैज बीन ट्राइड एवरीवेयर इन द कंट्री. एंड उसके रिजल्ट्स यही हैं कि 4.7 लाख के करीब फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 से 19 वर्ष के हमारे इसमें ऐड हुए, विच इज वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम देम टू द इलेक्टोरल रोल एंड रिक्वेस्ट देम टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस एंड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ द डेमोक्रेटिक फेस्टिवल. सो मच सो एक ये भी सुविधा दी गई है कि जो 1 जनवरी 24 को 18 साल के नहीं थे लेकिन ड्यूरिंग 2024 18 साल के होने वाले हैं, यानी कोई 1 जनवरी और 31 अप्रैल के बीच में 30 अप्रैल के बीच में अगर कोई 18 साल का होगा तो एडवांस एप्लीकेशन दे दें ताकि उसको भी वोटिंग का मौका मिल जाए, मतलब बार बार ना जाना पड़े. हर बार तो SSR होता नहीं है. सो देयर आर 1.09 लाख एडवांस एप्लीकेशंस which have been received, and with respect to the 1st April, 1st October and the 1st July. Gender ratio in 18-19 age group has also increased. As I mentioned, more and more girls have enrolled themselves. Friends, अगर मैं अब assured minimum facilities की बात करूं, so there are सभी मतदान केंद्रों पर जितने भी मतदान केंद्र हैं या सभी मतदान केंद्रों पर अब एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी, यानी आपको पीने का पानी, रैंप, बिजली, टॉयलेट. तो दिस इज टू मेक द वोटिंग एक्सपीरियंस वेरी वेरी इजी फॉर द वोटर्स, क्योंकि ये भी हमें मालूम है कि गर्मी का समय होता है. तो ये सारी व्यवस्था यहाँ करने की तैयारी की गई है. अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में आपको मैं बताऊं, इससे पहली वाली स्लाइड, So
टोटल नंबर है 37,809, एवरेज वोटर्स हैं 879। अर्बन रूरल का आपको यहां मैंने बताया है कि 4,340 इसमें से अर्बन है और 33,469 आर दी रूरल थिंग्स। इसमें मोर देन 50% पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। सो आउट ऑफ टोटल 37,809 पोलिंग स्टेशंस, there would be webcasting arrangements on 22,685 पोलिंग स्टेशंस। इसमें डायरेक्ट फीड हमारे कंट्रोल रूम में देखते रहेंगे लोग, ताकि अगर कोई भी वहां गड़बड़ी की शिकायत होती है या गड़बड़ी देखी जाती है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन हो सके। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूथ और वीमेन, इनको आगे रखना, फोकस में रखना थ्रू इलेक्शंस, एक इनको इंपॉर्टेंस देने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए देयर वुड बी 300 पोलिंग स्टेशंस व्हिच विल बी मैन्ड बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो हमारे स्टाफ हैं वो इसको मैनेज करेंगे, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं। सिमिलरली देयर वुड बी 700 बूथ्स विच विल बी मैनेज्ड बाय ओनली यंग एम्प्लॉइज, जो अभी रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं। तो जैसे बच्चे भी जाए, जैसे यंग वोटर्स जाएं, उनको लगे हमारा ही जैसा कोई व्यक्ति उनका वोट ले रहा है, जस्ट टू गेट ए sense of involvement and empower them. And similarly, there would be 4,000 polling stations which will be managed by only women, all women staff. तो उससे भी women को भी आने में भी सुविधा है और एक empowerment भी उससे उनका निश्चित होता है। If we look at the care for PWD voters, जो PWD voters हैं उनको फॉर्म 12D भर के घर से वोटिंग की सुविधा है। यानी वो अगर नहीं चाहते किसी वजह से, उनको दिक्कत है पोलिंग स्टेशन तक जाने की, तो दे कैन फिल अप ए फॉर्म एंड देयर इज ए फैसिलिटी टू देम एंड टू वेरी सीनियर सिटीजन्स टू वोट फ्रॉम देयर कंफर्ट ऑफ देयर होम। मोस्टली पीपल वांट टू कम टू द पोलिंग स्टेशन, दिस इज व्हाट इज आवर एक्सपीरियंस। एंड if they come to the polling stations, there would be large number of facilitations which we will ensure at each booth. What are those? रैंप हो जिससे कि उनकी व्हील चेयर आराम से चढ़ जाए, एक व्हील चेयर की व्यवस्था हो, एक वॉलंटियर की व्यवस्था हो, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था हो, और एक रेस्पेक्टफुल उनके साथ में बिहेवियर हो। जैसे अभी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं कि किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को सम्मान के साथ बोला जाए, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। दिस इज व्हाट वी आर एस्टेब्लिशिंग, दैट एंटायर सोसाइटी स्टार्ट्स काइंड ऑफ गिविंग देम देयर ड्यू एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम। इफ पोलिंग स्टेशन पे कर सकते हैं आप लोग देखभाल, तो एयरपोर्ट पर भी कर सकते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से समाज में उनके प्रति सम्मान बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े और उनके प्रति कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल, डिमीनिंग शब्दों का इस्तेमाल ना हो। So this was for facilitation of our PWD and elder voters. We will reach to the last mile. मतलब पोलिंग स्टेशंस को इस जगह तक पहुंचाएंगे जहां लोगों को सुविधा मिले। जैसे लास्ट माइल के जो पोलिंग स्टेशंस हैं, फॉरेस्ट एरिया में जो भी नक्सल प्रभावित एरिया हैं या जो भी इनएक्सेसिबल एरिया हैं, सब में हम अंदर तक जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहां आपको दिखाए जा रहे हैं कि इन जगहों में भी हम जाके, जहां कोई रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बन रही हैं, या जैसे बोलंगीर ब्लॉक का ही एक एग्जाम्पल है, तो वहां जाके हम पोलिंग स्टेशंस को शिफ्ट करेंगे ताकि आपके द्वार तक पहुंचे और आप वोट देना। दिस इज ऑल टू एंश्योर दैट मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन हैपेंस इन द वोटिंग। पीपल पार्टिसिपेट क्लोजर टू देयर हाउस एंड इन द एनवायरमेंट विच इज कंड्यूसिव एंड विच इज हेल्पफुल टू देम। जहां जहां वोटिंग परसेंटेज कम थी, वहां के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जो कि हमारी स्टेट का जो वोटर टर्नआउट है, यू नो, इज 73.29%। लेकिन 23 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जिनका नेशनल जो वोटर टर्नआउट है 67%, उससे कम थी। इसी प्रकार से 59 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जो 67 और 73 के बीच में, यानी वो स्टेट एवरेज से नीचे हैं। तो और 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें कि टर्नआउट, स्टेट के टर्नआउट 73% से नीचे था। तो इन सब में एक विशेष प्रयास है कि इनमें हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसको बोलते हैं टिप, यानी टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। वी आर गोइंग टू द लास्ट माइल, आइडेंटिफाइंग, ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैव बीन आस्क्ड टू गो टू द लास्ट माइल,
make more and more registration and ensure that after adding them into roll, they also bring them to poll day. So roll to poll, that's what is the strategy. Z News.